Good morning everyone. I am Sheetal from BSc Chemistry Honors second year. Today I am going to make a presentation video on the chapter UV spectroscopy. First topic is electronic transition. The process of excitation of electron from ground state to excited state after observing suitable amount of energy and de-excitation of electron from excited state to ground state by releasing energy is called electronic transition. Here we have seen an electron in the ground state. After absorbing a suitable amount of energy, this electron is excited to the excited state. ग्राउंड स्टेट को हम जनरली होमो बोलते हैं. होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल या फिर बोलते हैं बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. अनएक्साइटेड स्टेट को हम बोलते हैं ल्यूमो. इट मीन्स लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल or anti-bonding molecular orbital. When a UV invisible light is absorbed by the substance, the electron of that substance get excited and they leave their original atomic orbital, it means ground state atomic orbital, and occupy new atomic orbital which are of high energy. इट मीन्स जो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होती हैं वो हाई एनर्जी की ऑर्बिटल्स होती हैं. इसीलिए एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन रूल फॉर SP, PD and DD transition. The rules which tell about the occurrence of SP, PD, DD transition are called selection rules, and these are: first rule is spin multiplicity rule. Spin multiplicity rule states that the transition will be allowed if the spin-spin multiplicity of excited state remains the same. It means delta S value remains 0 to that of the ground state. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम का एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम S to P वो होती है अलाउड ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू लेपोर्टे रूल. कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6, 3s के अंदर 2, 3p के अंदर 6 और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके चले जिसके अंदर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर एक्साइटेड होके ऊपर चला जाता है, लेकिन इसकी जो स्पिन है वो नीचे थी वैसे ही है. तो अकॉर्डिंग टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल दिस ट्रांजिशन इज ऑल्सो अ लाउड ट्रांजिशन. Second rule is Laporte rule. It states that the transition for centrosymmetric molecule will be allowed if the value of L changes. It means delta L की value +1 to -1 and delta L की value is not equals to 0 होनी चाहिए. So allowed transitions are L0 to L1, L1 to L0, L1 to L2, but it is not L0 to L0, L1 to L1. For example, in case of calcium, the transition of electron from S to P are allowed transition according to Laporte rule. As we seen from the electronic diagram, here in 4s orbital there are 2 electrons. After absorbing energy, the electron from 4s is excited from to 4p. It means here L from electron is excited from L0 to L1. So according to Laporte rule, this transition will be allowed transition. The Laporte allowed transitions are ungarrett to garrett and vice versa. Laporte forbidden transitions are ungarrett to ungarrett and garrett to garrett. Determination of nature of atomic orbital, whether it is garrett and ungarrett. So garrett orbitals are those atomic orbital which have inversion of symmetry or center of symmetry. जिसके अंदर center of symmetry या inversion of symmetry होती है उसको उस मोलिकुलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल को हम बोलते हैं गैरेड मोलिकुलर ऑर्बिटल. एंड जिसके अंदर ना ही तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है और ना ही इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं अनगैरेड. सो अलाउड ट्रांजिशन जो होते हैं वो अनगैरेड टू गैरेड होते हैं या फिर गैरेड टू अनगैरेड होंगे, और जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं वो अनगैरेड टू अनगैरेड होते हैं एंड गैरेड टू गैरेड होते हैं. Laporte forbidden transition. The transition which are not pure DD transition and has low intensity are called Laporte forbidden transition.
कोजेस जो होते हैं लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन के, मतलब किस कारण होता है लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन? सो द लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ p and d orbitals by the distortion in the symmetry of the complex as। सो रीजन है, पहला है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लिगेंड in octahedral complexes in which all the ligands are not same have the irregular octahedral symmetry and does not have center of symmetry. So intermixing of p and d orbital occur, hence transition will not be pure dd transition. Therefore जो complex होगा वो colored होगा and जो band होगा वो होगा poor absorptivity का. It means जो epsilon नोट की जो वैल्यू होगी वो 5 to 10 होगी. Second is presence of weak metal ligand bond. So transition metal complex have not resin bond. जो metal और ligand का bond होता है transition metal के बीच में वो ज़्यादा resin नहीं होता, जिसके कारण वाइब्रेशन होती है एंड दस दे मे अंडरगो वाइब्रेशन, जिसके कारण जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टोर्टेड हो जाती है और जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है जो कि वो लॉस्ट हो जाती है. और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री लॉस्ट होगी सो इंटरमिक्सिंग ऑफ p and d orbitals occur, hence transition will not be pure dd transition. These transitions are called vibronically allowed transition and effect is called vibronic coupling. So the transition which can take place due to intermixing of p and d orbital due to vibration in the molecule and break metal ligand bond and the presence of different types of ligand, उसको हम बोलते हैं vibronically allowed transition. Type of electronic transition. So there are four type of electronic transition and it is divided into two parts. First is transition between bonding to anti-bonding molecular orbital. For example, bonding होती है हमारे पास sigma और pi और anti-bonding होती है sigma star and pi star. So first transition is between sigma to sigma star transition. So the transition in which excitation of electron take place from sigma bonding molecular orbital to sigma anti-bonding molecular orbital is called sigma to sigma star transition. Here we have seen that this is a sigma which is a bonding molecular orbital and this is a sigma star anti-bonding molecular orbital and after here ये जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के ये एक्साइटेड होके सिग्मा स्टार के अंदर जा रहे हैं, तो दिस इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. ये जो ट्रांजिशन होते हैं इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, हैंस इट टेक प्लेस टुवार्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ. We have also read this relation energy is inversely proportional to lambda. If lambda is high then energy must be shorter and if lambda is shorter then energy will be high. This excitation can take place in ordinary UV and visible region, hence it has no importance in UV spectroscopy. Sigma to sigma star transition take place in all compound because sigma bond is the first formed bond. It means all single bonds are sigma bond. अब इस ट्रांजिशन का कोज क्या होता है, इसलिए इसका कोज होता है कि जो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है वो गैरेड होती है, जबकि जो सिग्मा स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है वो अनगैरेड होती है. एंड अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे रूल के अंदर हमने पढ़ा था कि गैरेड टू अनगैरेड जो ट्रांजिशन होता है वो अलाउड ट्रांजिशन होता है. सो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल गैरेड टू अनगैरेड ट्रांजिशन आर सिमेट्रिकली अलाउड. सो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आर अलाउड ट्रांजिशन. Second is pi to pi star transition. The transition in which excitation of electron take place from pi bonding molecular orbital to pi star anti-bonding molecular orbital is called pi to pi star transition. Here this is pi bonding molecular orbital. It can also be written in this form and this is pi star. दिस इज गैरेड मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्ट है वो अलग अलग हैं और यहाँ पर ये अनगैरेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाती है, तो यहाँ से जो ट्रांजिशन होगा वो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा. फॉर दिस ट्रांजिशन एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस, हैंस इट टेक प्लेस टुवार्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ. सो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन टेक प्लेस इन अनसैचुरेटेड सेंटर. अनसैचुरेटेड सेंटर जिनके अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है, इट मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन एल्कीन, एरोमेटिक रिंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एल्काइंस के अंदर
एजो कंपाउंड के अंदर और कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर। इसका कोज भी यही होता है कि जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है वो अनगैरिड होती है एंड पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होती है गैरिड होती है। सो अकॉर्डिंग टू लेपोर्टे रूल अनगैरिड टू गैरिड जो ट्रांजिशन होगा वो अलाउड ट्रांजिशन होगा। सो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल गैरिड टू अनगैरिड ट्रांजिशन आर सिमेट्रिकली अलाउड। सो pi to pi star transition are allowed transition. Next is B part, in which transition between non-bonding molecular orbital, it means n to anti-bonding molecular orbital, it means sigma star to pi star transitions होते हैं इसके अंदर. So first transition is n to sigma star transition, it means non-bonding to anti-bonding molecular orbital. So the transition in which excitation of electron take place from an non-bonding molecular orbital to sigma star anti-bonding molecular orbital is called n to sigma star transition. This is a non-bonding molecular orbital and this is a anti-bonding sigma molecular orbital. So here from sigma ये जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा के अंदर प्रेजेंट है, सॉरी नॉन बॉन्डिंग के अंदर प्रेजेंट है, सिग्मा के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए ये n to sigma star transition हो जाता है. For these transitions, energy requirement is very less than to sigma star transitions, hence it takes place towards the longer wavelength. N to sigma star transition take place in saturated compound containing heteroatom having lone pair. It means जो X होता है उस alkyl halide के अंदर, उसके अंदर lone pair होते हैं, तो उसके अंदर N to sigma star transition हो जाता है. OH के अंदर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो इनके अंदर भी हो जाता है. और ये जो अमीन्स होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो इसके अंदर भी हो जाता है. कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर भी हो जाता है. इसका कोज है एंड जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो गैरिड होती है, सॉरी ना ही तो वो अनगैरिड होती है ना ही गैरिड होती है, एंड एन स्टार जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो अनगैरिड है. सो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल गैरिड टू अनगैरिड ट्रांजिशन जो होते हैं वो सिमेट्रिकली अलाउड होते हैं. सो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन ट्रांजिशन. फॉरबिडन ट्रांजिशन जो प्योर डी ट्रांजिशन नहीं होते हैं वो होते हैं. सेकेंड इज फ्रॉम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन. In these transitions, excitation of electron take place from an non-bonding molecular orbital to pi star anti-bonding molecular orbital is called n to pi star transition. This is a non-bonding molecular orbital and this is pi star anti-bonding molecular orbital. Here again non-bonding to pi star के अंदर हो रहा है. So this is n to pi star transition. For these transition energy requirement is very less, hence it take place towards the longer wavelength. So n to pi star transition take place in heteroatom of unsaturated center. Unsaturated center वही double bond वाला center of molecule having lone pair. It means nitrogen double bond nitrogen in azo compound, carbonyl in unsaturated carbonyl compound. इसका कोज है n molecular orbital is not garrid or ungarrid and pi star molecular orbital is garrid. So according to selection rule garrid to ungarrid transition are symmetrically allowed. So n to pi star transition are forbidden transition. अब जो यहाँ से एनर्जी ऑर्डर आया वो आया n to n स्टार ट्रांजिशन, सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी होती है, फिर n to सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार एंड देन एन टू पाई स्टार. स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है एन टू पाई स्टार ग्रेटर देन पाई टू पाई स्टार, फिर एन टू सिग्मा स्टार एंड सबसे जो कम स्टेबिलिटी होती है वो एन सिग्मा टू सिग्मा स्टार की होती है. अब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि प्रेडिक्ट द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड. फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन के अंदर देखना है तो इसको हम इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, यहाँ पे बीच में सेंटर में कार्बन होता है, हाइड्रोजन ये चारों तरफ से अटैच होते हैं. तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, इसके अलावा ना ही तो इसके पास लोन पेयर है ना ही डबल बॉन्ड है. तो ये जो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा वो होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. सिर्फ इसके अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है, वो भी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है. एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हर एक कंपाउंड के अंदर पॉसिबल होते हैं.
सेकंड एग्जांपल जैसे कि CH3Cl। अब इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम खोल के लिखें तो कार्बन बीच में 3 हाइड्रोजन अटैच है और एक क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर हमें पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो पॉसिबल होगा ही होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसके साथ एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल होगा क्योंकि इस क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे दो ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार। इसके बाद थर्ड एग्जांपल HC डबल बॉन्ड OH। इसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है। तो इसके अंदर चारों जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल होंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। क्लोरीन का एग्जांपल लेके चलें तो क्लोरीन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड है और क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही पॉसिबल होंगे, वो होंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो कि हर एक के अंदर पॉसिबल होता है, एंड सेकंड इज एन टू सिग्मा स्टार। फिफ्थ एग्जाम्पल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इट मीन्स इथीन दे रखा है, इथीन के बीच में डबल बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके अंदर दो ही होंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। नेक्स्ट वी विल स्टडी क्रोमोफोर। ये जो क्रोमोफोर होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं दैट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन एंड इम्पार्ट्स कलर टू द कंपाउंड इज कॉल्ड क्रोमोफोर। तो जो क्रोमोफोर होते हैं वो कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप होते हैं, इसलिए इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप के नाम से। तो क्रोमोफोर जो ग्रुप्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एक्सेट्रा ग्रुप बिहेव्स एज क्रोमोफोर्मिक ग्रुप। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये बिहेव करते हैं क्रोमोफोर ग्रुप के जैसे, किसी भी कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है वो क्रोमोफोर की तरह all those compound which absorb light of wavelength in the range 390 to 780 नैनोमीटर appear color to the human eye। क्योंकि जो विजिबल रीजन की वेवलेंथ होती है वो यही होती है 390 टू 780 नैनोमीटर। तो अगर कोई भी कंपाउंड है वो इसी वेवलेंथ के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो ऑफकोर्स हमारी जो ह्यूमन आई है उसके लिए कलर्ड ही अपीयर होता है। क्वेश्चन आ जाए अगर, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटा कार्टून जो होता है जिसकी लैम्डा मैक्स होती है 450 नैनोमीटर, वो कलर्ड होती है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है। तो क्लियरली सीन कि इसके अंदर कितने सारे नंबर ऑफ डबल बोन प्रेजेंट है, तो इसके अंदर मतलब डबल बोन प्रेजेंट है तो वो क्रोमोफोर की तरह एक्ट करेंगे। सो एज देयर आर 11 डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है, 11 डबल बॉन्ड है जो कि किसके अंदर है, कॉन्जुगेशन के अंदर है। सो देयर विल बी मोर डिस्पर्सल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर जा सकता है, ये इधर, तो मतलब डिस्पर्सल हो सकती है इन डबल बॉन्ड की। So due to resonance there occur more dispersal of pi electron and more energy will be released। तो resonance के कारण एनर्जी रिलीज हो जाएगी, सो वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो जाएगी, वैल्यू जो है लैम्डा मैक्स की वो इंक्रीज हो जाएगी विच कोरस्पॉन्ड टू द विजिबल रेंज रीजन। तो ये जो है ऑफकोर्स इस रेंज के अंदर आती है, तो ये हमें कलर्ड ही एब्जॉर्ब होती है, कलर्ड अपीयर होती है। तो हैंस बीटा कार्टून जो होता है वो अपीयर होता है कलर्ड। इसके बाद जो सेकेंड ग्रुप आता है वो होता है ऑक्सोक्रोम्स। तो द ऑक्सिलरी ग्रुप विच इंटरेक्ट विद द क्रोमोफोर, मतलब वो ऑक्सिलरी ग्रुप जो ऊपर हमने क्रोमोफोर ग्रुप पढ़ा है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा एंड कोज करेगा शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। और इसके कारण क्या होगा, ऑक्सोक्रोम के कारण जो वेवलेंथ के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द बैंड इज कॉल्ड ऑक्सोक्रोम। जो ऑक्सोक्रोम होते हैं उसको हम कलर इन्हेंसिंग ग्रुप भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये कलर की जो इंटेंसिटी होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं ड्यू टू शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल है जैसे कि NH2 है, सब्सटीट्यूटेड RNH है, R2N है, OH है, OCH3 एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन आ जाए, वाई ट्रांजिशन occur towards longer wavelength on attaching oxochrome।
तो इट इज़ ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द ऑक्सोक्रोम टू एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन, क्योंकि जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर देते हैं। अगर कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगी तो जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, हैंस जो लैम्डा है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इट इज़ ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द ऑक्सोक्रोम टू एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन ऑफ क्रोमोफोर by sharing their non-bonding electron, which causes delocalization of electron and thus the electron of the system decrease. Sorry, energy of the system जो होगी वो decrease हो जाएगी. So lambda value increase and thus the energy of the system decrease. So lambda जो lambda की value होगी वो क्या हो जाएगी, increase. इसके बाद शिफ्ट्स आते हैं, जैसे कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? द शिफ्ट इन विच द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। इट मीन्स जो इसके अंदर जो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होगा वो टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ होगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट। और ये बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, इट टेक प्लेस बाय इंक्रीजिंग द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इट मीन्स अगर हम ऑक्सोक्रोम्स लगा देते हैं तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। और ये जो बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है इसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेड जो कलर है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो डायग्राम से देखें तो ये जो लैम्डा मैक्स है, ये वाला जो लैम्डा मैक्स है ये ओरिजिनल था। इसके बाद जब हमने ऑक्सिलरी ग्रुप इट मीन्स ऑक्सोक्रोम्स जब हमने इसके अंदर लगा दिए तो लैम्डा मैक्स क्या हो गई, मतलब क्या हुआ है, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हुई है। एब्जॉर्प्शन तो सेम ही था लेकिन सॉरी इंटेंसिटी जो थी वो सेम थी, लेकिन जो लैम्डा मैक्स है वो इंक्रीज हो गया आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सोक्रोम्स। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट अगर हम देखें तो द शिफ्ट इन विच द मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन टेक प्लेस टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो होता है वो अगर हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को डिक्रीज कर देते हैं तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। और इसको हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। ब्लू शिफ्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे पास ब्लू कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है, इसलिए इसको हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो था, ये वाला जो कर्व थी ये ओरिजिनल की थी, यहाँ पे लैम्डा मैक्स ज़्यादा थी और जब हमने एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को डिक्रीज कर दिया तो ये वेवलेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसके बाद आता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? द शिफ्ट इन विच द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड इंक्रीज एट द डिक्रीज एट द सेम लैम्डा मैक्स is called hypsochromic shift. It take place by decreasing the extended conjugation। अगर हम extended conjugation को decrease करते हैं तो जो shift होती है वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होती है। और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है? द शिफ्ट इन विच द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड जो होती है वो इंटेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी एट द सेम लैम्डा मैक्स। इट मीन्स लैम्डा मैक्स तो सेम होगी लेकिन इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, उसको हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इट टेक प्लेस बाय इंक्रीजिंग द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सोक्रोम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो लैम्डा मैक्स तो दोनों ही कर्व में सेम है, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल कर्व ये थी और जब हमने एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को हटा दिया तो इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। और इस कर्व में हम अगर हम देखें तो यहाँ पर लैम्डा मैक्स तो सेम है, लेकिन जब ये तो थी ओरिजिनल कर्व और जब हमने इसके अंदर ऑक्सोक्रोम्स इंट्रोड्यूस कर दिए तो जो इस कर्व की इंटेंसिटी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।